Bhubaneswar Central, Shri Narayan Jaina. Secretary, School Education, Government of India, Shri Sanjay Kumar. We will be having Chairman BBS, Shri Chamu Krishna Sastri ji. We'll be having Professor Basanta Kumar Panda. We'll be having Madam Joint Secretary Languages, Neeta Prasad, and Professor Sailendra Mohan, Director CIIL Mysuru. The day gets brighter with their addresses. They'll be sharing their thoughtful insights with each one of us. A day that will be marked as a new era when it comes to spreading love for language. ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିବସ ଗର୍ବର ଗୌରବର। ଆମ ଗହଣରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆସି ଅତିଥିଗଣ ପହଞ୍ଚିବେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ପ୍ରଥମେ ଏକାଡେମିକ ବିଲ୍ଡିଂ ଏବଂ ଅଦର ଫାସିଲିଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ रिबन काटी उद्घाटित करेंगे। परवर्ती समय समस्त फैसिलिटीर गोटे टूर नेला परे मंच उपर आसी उपस्थित हेबे। आज युवपीढ़ी विशेष भाव में एक एभली मुहूर्त जोठी से समस्त को शुणिबार आमको सुजोग मिलिबो जहांकठु आमे अनुप्राणित। आज माननीय मुख्य अतिथि एवं समस्त सम्मानित अतिथि मानक उपस्थिति आज दिवस को आम समस्त स्मरणीय करिबो। कहीं पूर्वांचल भाषा केन्द्र जो भाव में यही विगत दिन मानक भाषार प्रचार प्रसार कर्तव्यरत से आम समस्त को प्रेरणा मिले। It's an organization that has been working relentlessly to ensure that Odia reaches every corner of the world, and the languages of India, especially Eastern India, that is known for its flavors, that is known for its touch of heritage, is known to everyone. And आमर जो ग्रंथ अच्छी आमर जो पुस्तक अच्छी जहाँ युवपीढ़ी पाखे पहुँचवा कथा हुए तो आज पर्यंत आम भाषा को युवपीढ़ी पाखे पहुँचेबारे कोठना कोठी आहुरी किछि करिवार आवश्यकता अच्छी। It needs a lot of research, it needs a lot of development to ensure that the young ones know what our culture, languages are. कहीं कोठना कोठी आम भाषा ही होची संस्कृतिर बाहक एवं यह आमे आम गुरुजन मानक पाखरु शिखिछु। अल्प समय प्रतीक्षा आम गहन आमर माननीय मुख्य अतिथि एवं समस्त सम्मानित अतिथि माने उपस्थित हेबे। भारत एक एभली देश जहाँ प्रत्येक प्रांत प्रत्येक राज्य रे निज नियारा भाषा नियारा संस्कृति पाई सारा विश्व रे परिचित। ए धारा रे पूर्वांचल भाषार विकास पूर्वांचल भाषा केन्द्रर दायित्व एवं से दायित्व को सुचारू रूपे तुलाउछि ईस्टर्न रीजनल लैंग्वेज सेंटर जहाँ को आज किछि नुआ फैसिलिटी मिलवा को जाउछि। माननीय केंद्र मंत्री श्रीयुक्त धर्मेंद्र प्रधान महोदय कर कमल रे जे कि आज आम यही विशेष अवसर मुख्य अतिथि समस्त को पुणी थे अनुरोध करी आपण मैंने शांति श्रृंखला रक्षा करेंगे। मोबाइल फोन्स गुड़ी को साइलेंट मोड रखिए। अल्प किछि समय प्रतीक्षा तापर आमे अतिथि मानक यही ईस्टर्न रीजनल लैंग्वेज सेंटर प्रेमाइसेस रे स्वागत करिबा। I can see the building decorated with beautiful flowers and the energy is absolutely contagious. There is a positive vibe to this institution that has been inspiring us all. And today, on a very special day like this, when we are all set to inaugurate the newest assets, the newest facilities of this organization, and where guests like Honourable Union Minister Shri Dharmendra Pradhan ji, Honourable MP Bhubaneswar, Madam Aparajita Sarangi, Honourable Mayor Bhubaneswar Central, Narayan Jaina, and other dignitaries will be joining us. We are looking forward to hear from them and know from them that their journey with Odisha, the development of Odisha and Odishan art and culture definitely goes through the love for language. Ajira Divasa, Ama Samastankara, Sahajog Kamana Kare, a विशेष कार्यक्रम को सफल करिबा पाई. And while dignitaries will be inaugurating the newest facilities, taking a tour, we'll be able to see the live feed here on stage. आज दिवसर प्रत्येक विशेष मुहूर्त को आमे समस्ते ए मंच उपर ही देखि परिबा. And then the dignitaries will be joining us on stage. We look forward to hear from them, learn from them, get some motivation and learn from their experience and insight. Once again, jo mane ebe asichanti, I can see some of my friends are still around. आपण माने आसन ग्रहण करंतु.
and we are gearing up for this big day together. ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଆଗମନରେ ଉତ୍ସାହିତ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଭାଷା କେନ୍ଦ୍ରର ପରିସର ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମର ରିଜନାଲି ପପୁଲାର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ସ୍ୱର ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାର ଏ ମଞ୍ଚ ଏ ଭୂମିର ପରମ୍ପରା ବିଶେଷ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାର ଓଡ଼ିଶା is a land, Eastern India is a land known for its great hospitality amidst the music and traditional celebrations. We are welcoming Honourable Chief Guest, Honourable Union Minister Shri Dharmendra Pradhan ji, and all dignitaries whose presence is going to make this day bright and beautiful for each one of us. What an insightful day it's going to be, a day that marks a new beginning for ERLC, and the Eastern languages of the country are going to be promoted through organizations like this that is working really hard to ensure love for language reaches every heart. And when we are going to inaugurate the newest assets of the family that includes administrative cum academic block and hostel cum guest house, we are so glad, proud, and honored that Honourable Union Minister, Education, Skill Development, and Entrepreneurship, Shri Dharmendra Pradhan is here as the Honourable Chief Guest. माननीय केंद्र मंत्री श्रीयुक्त धर्मेंद्र प्रधान महोदय, सम्माननीय सांसद भुवनेश्वर श्रीमती अपराजिता षडंगी एवं अन्यान्य अतिथि माने आम गहन रे पहुंची सारी छंती। सुंदर दृश्य आज पूर्वांचल भाषा केंद्र अतिथि मानन को स्वागत करिवा गोटे नियारा परंपरा सृष्टि करिछि। We welcome the dignitaries at the premises of Eastern Regional Language Center. It's a day to remember and rejoice. Honourable Union Minister is unveiling the plaque to officially inaugurate the administrative cum academic building, hostel cum guest house in the presence of Honourable MP Bhubaneswar and other dignitaries. You can see the visual. ERLC is all set to inaugurate its new buildings for administrative purpose, academic purpose, hostel and guest house in the presence of Honourable Chief Guest, Shri Dharmendra Pradhan, Guest of Honour, Madam Aparajita Sarangi and other guests. May we request the dignitaries to do the honour of unveiling the plaque and officially inaugurating these buildings of ERLC. And we cannot thank Honourable Union Minister enough for his personal guidance and motivation in giving ERLC its newest assets. पूर्वांचल भाषा केन्द्र नूतन प्रशासनिक शिक्षा भवन छात्रावास
अतिथि निवास र ए भेटी पाई आमे माननीय केंद्र शिक्षा मंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद जणेबा को चाहिबु जहांकर व्यक्तिगत मार्गदर्शन जोगु ERCLC को निजर नूतन प्रेमाइसेस रे ए सुंदर भेटी मिली पारिछि. We can see the excitement in the faces of everyone who are participating and making this day bright and beautiful. The presence of honorable dignitaries is definitely telling us that it's a new generation for ERLC that begins today with the newest facilities that will be giving a lot of scope to students and authorities to work harder and perform better. माननीय केंद्र मंत्री आजिकार मुख्य अतिथि श्रीयुक्त धर्मेंद्र प्रधान महोदय फलक को उन्मोचित करी ए नूतन बिल्डिंग्स गुड़ी को उद्घाटित कर सारी मो अभिनंदन शुभेच्छार गोटे बड़ जोर करताली समस्त चाहिए. Can we have a louder round of applause as the newest buildings of ERLC gets inaugurated by Honourable Union Minister Shri Dharmendra Pradhan ji and other dignitaries. Honourable Chief Guest and all dignitaries will be taking a tour of the facility, and it will be an honor for the host team to show them how efficiently we have been working all these years and how these new buildings can help us work harder. And we have bigger dreams for ERLC, and perhaps those dreams coming true is a journey that begins today. Once again, we would like to thank Honourable Union Minister and MP Bhubaneswar and other dignitaries for doing the honors. As you can see, Manyavar Kendra Mantri Mahodaya facilities गुड़ी को परिदर्शन करुछंती. ERLC कर्तृपक्ष समस्त व्यवस्था संपर्क रे सूचना देउछंती माननीय केंद्र मंत्री एवं सम्माननीय सांसद भुवनेश्वर को. ये गोटे सुंदर परंपरा जोठी माननीय मंत्री महोदय निजे व्यक्तिगत भाव में समस्त फैसिलिटी को परिदर्शन करुछंती, तदारख करुछंती. सुंदर चित्र आपण माने देखि पारुछंती. विभिन्न सूचनार पोस्टर लगी ERLC प्रेमाइसिस भितरे जहाँ संपर्क रे सम्मानीय अतिथि मानक सूचना देउछंती कर्तृपक्ष. आज समस्ते उत्साहित, समस्ते आनंदित कहीं जो न्यू बिल्डिंग्स गुड़ी इनॉग्रेट हवा जाउछि ताहा ERLC रो भविष्यतर समस्त योजना को आहुरी सफल करिवार निजर योगदान दबो. The host team is quite excited. The guests are being greeted with fresh flowers. भविष्यतरे पूर्वांचल भाषा को आहुरी अधिक प्रचारित प्रसारित करिबारे ERLC गोटे बड़ दायित्व तुलेब. तेणु आजिकार दिन आगामी भविष्यत पाई ERLC रो दृढ़तम संकल्प पाई गोटे विशेष अवसर. अतिथि मानक आगमन रे सुंदर भाव में सुसज्जित होइछि ERLC रो प्रेमाइसेस जोथि पाई आमे होस्ट टीम को मध्य धन्यवाद जणेबा को चाहिबु. It takes a lot of effort to finish a project like this on time and to invite dignitaries as special as Honourable Union Minister and other dignitaries and keep the premises this ready, beautifully decorated, and the host team is doing excellently well. We'll have to give them the credit. अल्प समय प्रतीक्षा आमर अतिथि माने समस्त फैसिलिटी को परिदर्शन करी मंच उपरे आम सहित सामिल हेबे. प्रदीप प्रज्वलन सहित आमे आजिकार सभा कार्य अल्प समय मध्य आरंभ करिबु. आजिकार दिवस रे एभली अतिथि मानकर उपस्थिति आम समस्त को उत्साहित करुछि. खास करी आमर स्टूडेंट्स मानकु जो माने आज एई कार्यक्रम रे जोग देइछंती. आम भाषार प्रचार प्रसार भविष्यतर दायित्व सेवारंकर. तेणु से जानिबा उचित कहीं पूर्वांचल भाषा केंद्र भली गोटे अनुष्ठान एते परिश्रम करुछि आम भाषा गुड़िकर प्रचार प्रसार पाई. कोभली भाव में आम युवपीढ़ी भविष्य निजर
कर्तव्य सहित भाषार प्रचार को मध्य सामिल करि परिबे आ से संपर्क रे निजर मत देबे हमर समस्त अतिथि काहेकि ना ओडिशार केवल नुह पूर्वांचल भाषार प्रचार रे आम अतिथि मानकर गोटे बड़ योगदान रही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम our dignitaries have been working really hard to ensure the eastern languages of India that represents our culture are preserved, reaches out to millions of people who are not just residing in eastern India but across the nation and around the world. Honourable Union Minister and dignitaries are taking a happy tour of the facility at ERLC. And the host team is more than happy and proud to show them who and what we are, because we take extreme pride in the task that has been assigned to us. And it's a happy day and very momentous occasion as Honorable Union Minister has officially inaugurated the newest facilities that are going to help ERLC perform better in future. ओडिशा माटीरे आज पूर्वांचल भाषा केन्द्र को निजर नूतनतम प्रकल्प मिली आमर नुआ प्रशासनिक शिक्षा भवन छात्रावास अतिथि निवास जोगु एई अनुष्ठान कार्यकारिता कोठी ना कोठी आहुरी अधिक शाणित हो दक्ष हो एवं दक्षता उद्यमिता शिक्षार भारत सरकार मान्यवर केंद्र मंत्री महोदय उपस्थिति आम समस्त को प्रेरणा दौची ए लक्ष्य रे निजर योगदान दवा पाई. In a short while, the guests will be arriving on stage. As you can see, they are taking a full tour of the facility at ERLC, and the stage awaits the most honorable guests who will be joining us on stage and sharing their thoughts and ideas as to how we can make Odia language and the eastern languages of the country reach out to as many people as we can. Academic buildings ठारू नहीं पार्किंग पर्यंत समस्त फैसिलिटी को आम अतिथि मानकर व्यक्तिगत भाव में परिदर्शन करवा कोठी ना कोठी कर्तव्य निष्ठार गोटे बहुत बड़ निदर्शन सृष्टि करे कि आमे जदि आम दायित्व सठिक भाव में करिछु आज अतिथि माने मध्य प्रत्येक दायित्व ठीक भाव में निर्वाह हेछि कि नाही व्यक्तिगत भाव में. We cannot thank Honourable Union Minister Shri Dharmendra Pradhan, Honourable MP Madam Aparajita Sarangi enough for showing this love and trust on ERLC that will definitely inspire us to work harder in future. And the task in hand is humongous, but I think we are skilled enough to take care of in future. आम समस्त मुहरे हस उत्साह अपेक्षा मान्यवर केंद्र मंत्री महोदय सम्माननीय सांसद महोदयांकर जहाँकर उपस्थिति सहित चलचंचल हो उठिब सभा मंच प्रदीप प्रज्वलित करी अतिथि मानक स्वागत करी आमे आज ए विशेष दिवस को पारंपरिक रीतिनीति सहित पालन करिबा. A day to rejoice, a day to be really proud of.
as Eastern Regional Language Center has inaugurated its new administrative cum academic building, Hostel Cum Guest House. The newest facilities that has been curated, designed well for ERLC to perform better in future. Ladies and gentlemen, once again, I'll request all of you to ensure that your mobile phones are in silent mode. ସମସ୍ତ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସମ୍ମାନନୀୟ ସାଂସଦ ମହୋଦୟଙ୍କର କର କମଳରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ସୁସଜ୍ଜିତ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନଙ୍କର ରହିବାଠୁ ନେଇ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ERLCର ଗେଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ଠାରୁ ନେଇ ଏକାଡେମିକ ବ୍ଲକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ରହିଛି and these projects have been finished on time, so we would like to congratulate ERLC for the efficiency and for the love of work that they've been showing since years. अतिथि माने जहाँ भी मनरे प्रश्न अच्छी जहाँ भी जानिबार इच्छा अच्छी पचारि बुझुछंती एवं कर्मकर्ता माने तांको समस्त फैसिलिटी को व्यक्तिगत भाव में बुलाई नेउछंती giving the best of the facilities to students who will be a part of ERLC. The team that will be working here, the guests who will be joining us for different occasions, has always been a task that we take very, very seriously. And that shows the well-designed academic blocks, administrative blocks, hostel and guest house that just got inaugurated by Honourable Union Minister Shri Dharmendra Pradhan. This is going to make ERLC a state-of-the-art facility, and we look forward to more guests coming in, enjoying the facility, and the students who are part of ERLC to have better experience at learning languages that speaks about how great India, a nation, is. नवनिर्मित समस्त फैसिलिटी को पाखापाखि परिदर्शन कर सारे माननीय केंद्र मंत्री महोदय सम्माननीय सांसद महोदय नूतन प्रशासनिक शिक्षा भवन छात्रावास एवं अतिथि निवास सहित पूर्वांचल भाषा केंद्र आहरी सुंदर देखा जाउछि। अभिनंदन ए परिवार को जो माने
विगत वर्ष मानकरे भाषार प्रचार प्रसार पाई निरंतर भावरे प्रयासरत रहिछन्ति। अंगवस्त्र दे मान्यवर अतिथि माननकु स्वागत करुछन्ति। ERLC कर्तृपक्ष एवं स्थानीय व्यक्ति विशेष माने सुंदर दृश्य मान्यवर अतिथि मानकर फैसिलिटी परिदर्शन रो Ladies and gentlemen, on this big and bright day, we at ERLC family feel extremely proud and honored to welcome Honourable Union Minister Shri Dharmendra Pradhan, Honourable MP Bhubaneswar, Madam Aparajita Sarangi, at this absolutely special occasion when ERLC is inaugurating its new buildings, its newest assets, and their presence is making this day bright and beautiful for each one of us. मंच उपरे प्रतीक्षा करिसेंति समस्ते मान्यगण्य अतिथिंक पाई जहांकर उपस्थिति आजिकार दिवस को आम समस्तंक पाई स्मरणीय करिवो. Ladies and gentlemen, we are gearing up for the arrival of our honorable chief guest, Honorable Minister, Education, Skill Development and Entrepreneurship, Government of India, Shri Dharmendra Pradhan, Honorable Member of Parliament, Bhubaneswar, Madam Aparajita Sarangi, मु चाहिबी अतिथि मानक पई अभिनंदन रो गोटे बड़ जोर करताली काईकरा तांकर उपस्थिति आजिकार दिवस को आम समस्तंक पई विशेष करि देछि. माननीय केंद्र मंत्री महोदयंकर सम्माननीय सांसद महोदयंकर उपस्थिति पई आमे ERLC परिवार स्वागत जनाऊछु. अतिथि माननकु मते आज्ञा करताली जमा शुभु नाही, मु चाहिबी गोटे बड़ जोर करताली एभली अतिथिंक पाई जहांको पाई आजिकार दिवस आम समस्तंक पाई चिर स्मरणीय रहिबो. This land has a very special protocol of starting every special occasion in a traditional way. So may I request Honorable Chief Guest and dignitaries to please proceed for ceremony and lamp lighting. प्रदीप प्रज्वलन करी आजिकार ए कार्यक्रम शुभ उद्घाटन करिबा पई मो मान्यवर केंद्र मंत्री सम्माननीय सांसद एवं समस्त अतिथि माननकु अनुरोध करिबी. A moment of pride and honor. मान्यवर केंद्र मंत्री सम्माननीय सांसद एवं समस्त अतिथि माने प्रदीप प्रज्वलित करी आजिकार शुभ अवसर को अनुष्ठानिक भाव में आरंभ करुछन्ति. A sight too special to see Honourable Union Minister, Education, Skill Development and Entrepreneurship, Shri Dharmendra Pradhan, Honourable Member of Parliament Bhubaneswar, Madam Aparajita Sarangi, lighting the ceremonial lamp. कदाश्चित कालिंदी तट विपिन संगीत करबो मुदाभीनि नारी बदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मा सुरपति गणेशाय चितपदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. May the land be blessed by the Lord. May the love of dignitaries always guide us to ensure that the love for Odia language and Eastern languages reach out to as many hearts as possible. बंधुगण करताली सहित आमे कार्यक्रम शुभारंभ पाई अतिथि माननकु अभिनंदन जणैबा. माननीय केंद्र मंत्री सम्माननीय सांसद एवं समस्त अतिथि माननक कर कमल रे आज अनुष्ठानिक भाव में उद्घाटित हो जाइए शुभ अवसर. पूर्वांचल भाषा केंद्र पाई एक नुआ आरंभ
जोठी आमर नूतन फैसिलिटीज गुड़ी को इनॉग्रेट करी सारी छंती माननीय केंद्र मंत्री महोदय। Thank you so much, dignitaries, for doing the honor. What a bright day indeed. समय स्वागत अभिभाषण रो may I request Joint Secretary Languages, Madam Neeta Prasad, to officially welcome everyone, please. सबको नमस्कार। भारत सरकार के माननीय शिक्षा तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, भारत सरकार के सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता श्री संजय कुमार जी, माननीय सांसद श्रीमती अपराजिता शारंगी जी, भारतीय भाषा संस्थान के निदेशक प्रोफेसर शैलेंद्र मोहन जी, भारतीय भाषा समिति के अध्यक्ष पद्मश्री चामुकृष्ण शास्त्री जी, सचिव स्कूल शिक्षा उड़ीसा सरकार अश्वती जी, एनसीईआरटी के निदेशक श्री सकलानी जी, माननीय क्लासिकल सेंटर फॉर क्लासिकल स्टडीज इन क्लासिकल ओडिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री बसंत पांडा जी एवं यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, आज माननीय मंत्री जी ने भारतीय भाषा संस्थान के ईस्टर्न रीजनल लैंग्वेज सेंटर के नई बिल्डिंग का उद्घाटन एवं लोकार्पण किया है। इस अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। मैसूर स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर इंडियन लैंग्वेजेस या भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना हमारे देश के जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं, इनके विकास के लिए एक नोडल संस्थान के रूप में किया गया है। पिछले 50 से अधिक वर्षों से यह संस्थान इस दिशा में काम कर रही है। यह भारतीय भाषाओं के शिक्षण, संरक्षण, संवर्धन और अभिलेखन का काम कर रही है। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो परिकल्पना की गई है कि हर विद्यार्थी जिस भी भाषा में, अगर वो अपने मातृभाषा में पढ़ाई करना चाहे तो उसके लिए ये सुविधा और ये ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए। तो इस दिशा में CIIL एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में पाठन सामग्री उपलब्ध कराना, शिक्षकों का प्रशिक्षण, भारतीय भाषाओं में के दिशा में रिसर्च, जितनी भी विलुप्त हो रही भाषाएं हैं उनके ऊपर रिसर्च, उनका संरक्षण और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भारतीय भाषाओं का विकास कैसे किया जाए, इस दिशा में CIIL बहुत काम कर रही है। आज इसी सिलसिले में NCERT के साथ एक समझौते पर भी दोनों मिलकर कर रहे हैं कि जिसके अंतर्गत 80 से अधिक भारतीय भाषाओं में प्राइमर्स, छोटे बच्चों के लिए पठन पाठन मतलब पढ़ने की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। दोनों मिलकर इस पर काम करेंगे। इन सभी काम को करने के लिए CIIL कई तरह के कार्यक्रम चलाती है, जैसे नेशनल ट्रांसलेशन मिशन, नेशनल टेस्टिंग सर्विस, लिंग्विस्टिक डेटा कंसोर्शियम फॉर इंडियन लैंग्वेजेस, स्कीम फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस आदि कई तरह के स्कीम्स हैं। और CIIL के 7 रीजनल सेंटर्स हैं, जिसमें ये भुवनेश्वर का सेंटर भी एक है। तो भुवनेश्वर इस सेंटर में 4 भाषाओं के ऊपर काम होता है, बांग्ला, उड़िया, मैथिली और संथाली। यहाँ पर इन चारों भाषाओं में शिक्षार्थियों का प्रशिक्षण किया जाता है। इस प्रशिक्षण के बाद
वो इन चारों भाषाओं में काम कर सकते हैं, इन भाषाओं में पढ़ा भी सकते हैं। इन भाषाओं के जो टीचर्स हैं उनके लिए रिफ्रेशर कोर्स आदि भी यहाँ तैयार किया जाता है। तो इस संस्थान के लिए एक नए बिल्डिंग की बहुत दिनों से आवश्यकता थी, क्योंकि पहले जो क्लासेस होते थे वो छोटे छोटे बिल्डिंग्स में होते थे। जितनी भी पर्याप्त मात्रा में रिक्रूटमेंट होने की जरूरत थी उतना हो नहीं पाता था। तो इस जरूरत को आज पूरा किया गया है इस भवन के निर्माण द्वारा, और इससे यहाँ इन चारों भाषाओं में जो काम हो रहा है वो अधिक सुचारू रूप से हो सकेगा। तो आज के इस पावन अवसर पर आप सबों का मैं एक बार पुनः सबका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। Thank you so much, Madam Neeta Prasad, for the wonderful welcome address. Ladies and gentlemen, Odisha is a land of great hospitality and old traditions, so we would like to welcome the dignitaries on stage in a traditional way. May I request Madam Neeta Prasad to present Uttariya and a set of books to our Honourable Chief Guest, Honourable Union Minister, Shri Dharmendra Pradhan ji. पुस्तिका एवं अंगवस्त्र देई अतिथि मानक स्वागत करवा ERLC पाई गौरवर विषय। अंगवस्त्र जहाँ मो हेरिटेज प्रतीक, आम संस्कृतिर प्रतीक, एवं पुस्तिका जहाँ ज्ञानर प्रतीक। That's what ERLC represents: love for literature, land and languages. We feel so honored to welcome Honourable Chief Guest Shri Dharmendra Pradhan ji. I'll request Madam Neeta Prasad to also welcome Honourable Member of Parliament, Bhubaneswar, Madam Aparajita Sarangi. Her presence is definitely motivating each one of us to take our duties seriously and make ERLC a bigger organization in future. I'll request Madam to present Uttariya and a set of books to esteemed Secretary, School Education, Government of India, Shri Sanjay Kumar. And Head of School and Mass Education Department, Odisha, Madam Aswati S. The presence of such esteemed dignitaries is making the day so bright and beautiful for each one of us. Thank you, ma'am. May I now request Shri CIIL Mohanji to present Uttariya to Shri Chamu Krishna Shastri, Chairman BBS. Professor Dinesh Prasad Saklani. Madam Neeta Prasad. And Professor Sailendra Mohan ji to be felicitated by Shri Vasanta Panda. I'll request Shri Mohan to also felicitate Shri Vasanta Panda ji. And I'll request Professor Panda to also felicitate Professor Sailendra Mohan. These tokens of gratitude shows our love for the dignitaries, and we once again welcome them to this very, very special occasion. Thank you. Ladies and gentlemen, the journey of ERLC has been phenomenal when it comes to spreading love for language, preserving the Eastern languages of the country. We have a small audiovisual that will tell you more about the journey of ERLC so far. Can we have the video, please?
एक क्षुद्र चित्र आपण मानकु ERLC रो यात्रा संपर्क रे जणेबो। जांत्रिक त्रुटि पाई आमे क्षमा चाहूछु। आज कर शुभ अवसर रे आमे एक MOU मध्ये साइन करूछु CIIL मैसूरू एवं NCERT न्यू दिल्ली मध्य रे। May I request Professor Dinesh Prasad Shaklani and Professor Silin Mohan to please come forward to exchange the MOU. May this memorandum of understanding bring a new and bright day for the students who wants to study and research in languages. Thank you so much, CIIL Mysuru, NCERT New Delhi, for this collaboration that will definitely go a long way in reminding all of us that we must love language more than we do today, and organizations like ERLC will do its share in making these dreams come true. समय एभली जने व्यक्तित्व ठारू शुणा बड़ जहाँकर ओडिया भाषार ज्ञान आम समस्त शिक्षणीय। अनुरोध करी प्रोफेसर बसंत कुमार पंडा महोदय को क्लासिकल ओडिया लैंग्वेज संपर्क में निजर वक्तव्य रखिबे। प्रोफेसर पंडा। ओम ईला सरस्वती मही तिस्रो देवीर्मयुर्भवः बहिर्सिद्धं त्वं सिद्धः। ईला मातृ संस्कृति, मही मातृभूमि और सरस्वती मातृभाषा, ये तीन देवी आमको वरद हस्ते आशीर्वाद करंतु। We are assembled here for the inauguration of the building of Eastern Regional Language Center, working for the enrichment of the language of Eastern India under Central Institute of Indian Languages, Mysore, Ministry of Higher Education, Department of Higher Education, Ministry of Education. Esteemed Most Honourable Minister of Education, Shri Dharmendra Pradhan ji, Honourable Member of the Parliament of Bhubaneswar, Madam Sadangi, respected Secretary of School Education, Sanjay ji, respected Padma Shri Chamkrishna Shastri ji, Chairman of the Bharatiya Bhasha Samiti, respected Director of NCERT, Professor Shaklani ji, respected Director of CIIL, Shailendra Mohan ji, Madam Aswati, Secretary of School Education, Government of Odisha, and Madam Nita Prasad, Joint Secretary of Government of India in Education. It is my proud privilege to give you a brief note on Classical Odia Center, Classical Odia Language and Classical Odia Center, because I am working as the Project Director of Classical Odia Center. All other classical project directors and Director of Classical Languages also assembled here. My respected colleagues, respected former directors of CIIL, former principal of Eastern Regional Language Center, and dear students, it is my privilege to give the information that Odia is the sixth language and the first language in Indo-Aryan group after Sanskrit to get classical status.
in 2014. You might have known that in 2004, Government of India has created one new group that is called classical language. And 2004, Tamil got the classical status. And 2005, Sanskrit became classical. And 2008, Telugu and Kannada became classical. Then we have tried our best to be classical, and we proved that we are also ancient. There is a criteria that any language demands to be classical, it should be the antiquity of 2000 years and a heritage of literature, uninfluenced and original heritage of literature. These two things we have proved that from 3rd century before Christ, we have the tradition of epigraphy, and we have proved the chronological development of Odia language on the basis of the epigraphy from Ashokan inscription in 3rd century before Christ and Kharavela Hatigumpa inscription in 1st century before Christ till 15th century in Jagannath temple Jaya Vijay inscription. The other thing is that we have proved that there are several references like Bharatas Natya Shastra, like Panini's Ashtadhyayi Vyakarana, like Bauddha text Lalita Vistara, and so many things that we have the reference of Kalinga, Udra and Odia language. And the third is, we have a very rich heritage of Odia literature beginning from 11th century, like Charyapada, then the great poet Sarala Dasa, who composed a Mahabharata. It is greater than Sanskrit Mahabharata. It has 1,40,000 couplets. Then Odia Bhagavata of Jagannath Das, then Jagamona Ramayana of Balaram Das, then the beautiful archaic poetry of Kavi Samrat Upendra Bhanja, and so many things. I have to inform you, the first dictionary of Odia language was composed by Upendra Bhanja in poetry. There is no comparison in Indian languages. Only comparison is in Sanskrit. So this is the tradition of language and literature. On the basis of this, Government of India has accorded the classical status to Odia language in 2014, March 11. March 11, we are observing as Classical Odia Language Day. Then, as per the provision of Government of India, in 2020 June, our center, the Center of Excellence for Classical Odia has been established under the aegis of Central Institute of Indian Languages in Bhubaneswar, in Sardar Patel Hall complex, and I joined as the project director. Now we are carrying on research to propagate, to promote, and to preserve the classical documents of Odia language, both in oral and written. And also we have been organizing several workshops, seminars, invited talks, bilateral seminars and bilateral relations. We are now trying to translate classical text from Odia to other languages. So we have been assigned to translate other languages from Odia. Now we are translating the oldest grammar of Tamil, Tolkappiyam, to Odia. So these are the information that we are doing. We have till now we have published 6 books on different classical texts, and we are carrying on research to prove that Odia is a classical language with great heritage and so many multifarious genres of literature. So this is the thing I have to inform you. The other thing, maybe I may be permitted or I may be excused that now minister is there, and I have perhaps I have also told him several times that, sir, if this center will be developed and if center will be converted to a autonomous center, then Odia language and literature we can work sufficiently, and we can prove that in whole of Eastern India
Odia language is the oldest. I am not the alone. This has been told by several scholars from before me. So this is my submission, and I sincerely thank to respected minister, all the dignitaries on the dais, and also to all learned audience in front of me. Namaskar. धन्यवाद श्रीजुक्त पंडा महोदय। सारा विश्व रे भारतर परिचय आमर विभिन्न भाषा पाई एवं से भाषार प्रचार प्रसार रे CIIL रो गोटे बड़ भूमिका। So what's been the role and significance of CIIL in spreading the love for language of the country से संपर्क रे निजर मतामत रखिबा पई मु चेयरमैन BBS श्री चामुकृष्ण शास्त्री महोदय को अनुरोध करिबे। सर प्लीज। आदरणीय शिक्षा मंत्री जी और मंच में उपस्थित सभी अधिकारीगण और सभा में उपस्थित सभी विद्वज्जन एवं छात्रगण या अन्य भाषा प्रेमी लोग, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अभी यहाँ देख रहा हूँ बहुत से ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस के भारतीय भाषा संस्थान के संस्थापक निदेशक मान्य DP पटनायक जी भी इधर उपस्थित हैं, बाकी सभी पूर्व निदेशक उपस्थित हैं, बहुत से वाइस चांसलर्स, फॉर्मर वाइस चांसलर्स उपस्थित हैं, बहुत से भाषा विज्ञानी, शिक्षा तज्ञ यहाँ उपस्थित हैं। ये सभा का इतना बड़ा गरिमा यहाँ दिख रहा है और मैं इस संदर्भ में केवल इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि ये जो पिछले 200 सालों में जो सिखाया गया, भारत के लोग भारत से बाहर से आए हैं, यहाँ के निवासी नहीं थे, या भाषाएं बाहर से आए हैं, ऐसे कई चीजें सिखाए गए, क्योंकि पूरा भारतवासी लोगों को भाषा के आधार पर टुकड़ा टुकड़ा तोड़ने का तो आवश्यकता थी उनकी। तो ये सब सच्चाई नहीं है, हम सब जानते हैं, हम सभी यहाँ के ही हैं और सभी भारतीय भाषाएं यहाँ के ही हैं। सब भारतीय भाषाएं एक परिवार सदस्य है, अलग अलग परिवार नहीं है। और सभी भारतीय भाषाओं का जो अंत संबंध है, ये भी बहुत, इस भाषा के जो अंत संबंध है, इसी के कारण भारत आज तक जुड़ा रहा है। बस ये सब हम जानते हैं। भाषा के द्वारा लोगों को, समाज को, देश को जोड़ के रखना। और अब भारतीय भाषाओं के विकास के लिए जब त्रिभाषा सूत्र आया था, तब त्रिभाषा सूत्र का क्रियान्वयन करने के लिए पूरे देश में जितने भी भाषा शिक्षक हैं और केंद्रीय प्रशासन अधिकारियां भारत के अन्य राज्यों में जब जाते हैं, तब वहां उनको अल्प समय में वहां की भाषा सिखाने के लिए भारतीय भाषा संस्थान का स्थापना हुई थी और ऐसे ही काम चल रहा था। लेकिन समय के चलते बहुत से नए नए योजनाएं जुड़ गई। अभी आवश्यकता है भारतीय भाषा संस्थान का NEP 2020 के क्रियान्वयन के संदर्भ में, वहां नई शिक्षा नीति में जितने भी भारतीय भाषाओं के संदर्भ में संस्तुतियां हैं, इन संस्तुतियों के क्रियान्वयन के लिए भारतीय भाषा संस्थान को अपने आप को रीइन्वेंट करने की अभी आवश्यकता है, सोच चल रही है। जैसे 6 विषयों में आने वाले दिनों में भाषा क्षेत्र में बहुत काम करने की आवश्यकता है। टीचिंग, ट्रेनिंग, टेस्टिंग, ट्रांसलेशन
टेक्नोलॉजी और ट्रांसिशन, ऐसे कई विभागों में, जैसे भारतीय भाषाओं में अभी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग की व्यवस्था पॉपुलर रूप में भारत में अभी नहीं है। कुछ व्यवस्थाएं हैं लेकिन आवश्यकता है इसकी करने की। सभी भारतीय भाषा ग्रंथों का आपस में अनुवाद करने के लिए और पूरे विश्व में और भारत में हर दिन हर क्षण नया नॉलेज क्रिएशन हो रहा है। भारत के 90% लोगों को अंग्रेजी मालूम नहीं है। जो नॉलेज क्रिएशन हर क्षण हो रहा है, इस ज्ञान को हमें रियल टाइम में तत्क्षण तत्काल सभी 90% 100% भारतीयों को पहुंचाना है। सब तरही सभी भारतीय भाषाओं में तुरंत ज्ञान का अनुवाद की और ज्ञान निर्माण की, क्रिएशन की आवश्यकता है। इसके लिए वोकैबुलरी चाहिए, इसके लिए ट्रांसलेशन टूल्स चाहिए और ट्रांसलेशन टूल्स के द्वारा अनुवाद जो किया गया उसका एडिटिंग के लिए ट्रेन्ड मैन पावर चाहिए, शिक्षकों का प्रशिक्षण चाहिए। और भाषा का जो ये काम केवल भाषाविदों का काम नहीं है, संपूर्ण देश को इसके बारे में सोचना चाहिए। हर विषय के लोगों को सोचना चाहिए। भाषाओं का प्रयोग क्षेत्र जितने भी हो सकते हैं, सभी भाषा प्रयोग क्षेत्र में भाषा का, भारतीय भाषाओं का विकास होना चाहिए। भारत में भारतीय भाषा इकोसिस्टम निर्माण करना चाहिए। वर्तमान इकोसिस्टम इंग्लिश सेंटर्ड है, वो भारतीय भाषा सेंटर्ड इकोसिस्टम करना चाहिए। और भाषाओं में छोटी भाषा बड़ी भाषा ऐसा नहीं है, सभी भाषाएं भाषाएं हैं, सभी भाषाएं हमारी भाषाएं, अपनी भाषाएं हैं। इसलिए सभी भाषाओं में हमारा ये ज्ञान प्रवाह होना चाहिए, पूरे देश में ज्ञान प्रवाह होना चाहिए। और भाषा के माध्यम से भारत की एकता का सूत्र और सुदृढ़ करना चाहिए। भाषा के माध्यम में राष्ट्रीय भावैक्य का सूत्र सुदृढ़ करना चाहिए। तो इस प्रकार का एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी, बहुत बड़ा उत्तरदायित्व मैसूर स्थित केंद्रीय भाषा संस्थान का और यहाँ जो क्षेत्रीय केंद्र है भारतीय भाषा संस्थान का, इस केंद्र का और सेंटर ऑफ एक्सलेंस ओडिया लैंग्वेज का ये जो केंद्र है, प्राचीन ओडिया भाषा केंद्र है, इन सभी का एक बहुत बड़ा योगदान है। इसमें हम सब सहयोग करेंगे, सब मिलके फिर भारतीय भाषा के माध्यम से भारतीयता का, भारतीय ज्ञान परंपरा का पुनरुत्थान करते हुए भव्य दिव्य समृद्ध सुंदर भारत का निर्माण करेंगे। ऐसा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी से विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी। कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मोया, पंडित भय न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई। भारत भाषाओं की विशेषता यही है कि ये सारी भाषाएं प्रेम की बोली बोलती हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर रिमाइंडिंग अस द सिग्निफिकेंस ऑफ लैंग्वेजेस। वर्तमान आम तांको ठारू सुनिबा जहांकर दक्षता एवं कर्तव्य निष्ठार प्रशंसक आम समस्ते। She's been someone very strong-headed, absolutely old school, and the way she fights the battle for truth makes all of us a fan of her, and Bhubaneswar is absolutely privileged to have a member of parliament like her. So अनुरोध करिबी सम्माननीय सांसद श्रीमती अपराजिता षडंगी महोदयांको सभा को संबोधित करिबे। Honourable Minister, respected Shri Dharmendra Pradhan ji, the Secretary of School Education Department, Government of India, Shri Sanjay Kumar, the Secretary of School and Mass Education Department, Government of Odisha, Madam Ashwati, Madam Neeta Prasad,
Joint Secretary, Ministry of Higher Education, Government of India, Department of Higher Education, Government of India, Shri Padma Shri Chamu Krishna Shastri Ji, whose name I take with lot of reverence, Shri Basant Pandaji, who delivered a very engaging speech, Director Shri Shailendra Mohanji, and all of you associated with this institute and with Bhubaneswar and with Odisha. आपण समस्तंको मु नमस्कार जनाऊँची। जय जगन्नाथ। महाप्रभु जगन्नाथंको मने पकेकी आमे कोनसी कार्य शुभ कार्य आरंभ करुछु। आज बहुत बड़ दिन आम समस्तंको पाई, भुवनेश्वर पाई। आ भुवनेश्वर सांसद जेहेतु मु अच्छी मते अत्यंत गर्वर गौरवर अनुभूति होउछ। आपण समस्तंको तरफरु जो माने सोशल मीडिया माध्यम रे, टीवी माध्यम रे और प्रत्यक्ष भाव रे ए कार्यक्रम को देखुछंती, आपण समस्तंको तरफरु आदरणीय मंत्री महोदय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को आंतरिकता सहित धन्यवाद जनाऊछ। There are people who understand English and Hindi, so I will be shifting sometimes to English and sometimes to Hindi. We are all well aware of the fact that the Central Institute of Indian Language is located in Mysore, and this is an attached office, a very important office to the Ministry of Education, Government of India. There are 7 centers under this Central Institute, and we, people of Bhubaneswar and people of Odisha, are lucky enough to have one center here, one of the 7 centers which is catering to the needs of Eastern India in Bhubaneswar. And this has been a long journey, बहुत लंबा यात्रा रही थी। जुलाई 1970 रे जोठी आमे बसी छे ए जगारे से केन्द्रर आरंभ करा जाइथिला। और आज देखंतु एते वर्ष परे पाखापाखी 50 वर्ष हे गलानी आमे समस्ते पुणी गोटे बहुत भलो पदक्षेप ग्रहण करबा पई उपस्थित हेइछु। 16 कोटी टंकारे 7.2 एकड़ जमी रे आमरो एकेडमिक कम एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग तैयारी करा जाइछि और आमरो हॉस्टल कम गेस्ट हाउस तैयारी करा जाइछि। We are all looking up, want to stretch out and reach it. There would be training imparted here with lot of convenience, with lot of ease. Faculty would be staying here, the students would be staying here, and I'm sure the efficiency would definitely increase because of a better administrative cum academic unit and training building, research building, guest accommodation. So I think this is a big feather in the cap of the Central Institute of Indian Languages. I'm told that the work had started prior to COVID. COVID पूर्वरु एठी कामो आरंभ हेइथिला 16 कोटी टंकार कामो शिक्षा मंत्रालय अनुकूल रे कामो चलीछि, किंतु कोविड जोगु एटा मझिरे बंद करा हेइथिला आमे बुझी पारुछु और ता पर एटा त्वरान्वित करा जाइछि। आज आमे समस्त यार उद्घाटन उत्सव को देखुछु। आदरणीय मंत्री महोदय दिल्ली रो आसिक यार उद्घाटन करिसंती, तांकर समस्त सहकर्मी गण एठी उपस्थित अछंती। एटा भुवनेश्वर पाई ओडिसा पाई बहुत गर्वर कथा। और आपण माने समस्त जानिले जे 4टा भाषा रे एठी ट्रेनिंग दिया जाउछि, गवेषणा भी हबो। देखंतु सब जिंस होछि, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड. There is always room for innovation,
and much more learning. Life is a constant process of learning, enrichment, and improvement. So here, Odia, Bengali, Maithili, and Santali, these 4 languages are actually being dealt with. On behalf of each one of you, I thank Honourable Minister once again, and I thank all his colleagues who have come all the way to this beautiful city of Bhubaneswar. I would request them, some of them who have come from Delhi, who haven't seen Bhubaneswar much, must stay back and see this beautiful city and this beautiful state. I thank each one of you, and once again, आपरो समस्तंकु अनुरोध करिबी बहुत जोर करताली देकी शिक्षा मंत्रालय रो समस्त अधिकारी माननको धन्यवाद दियंतु। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय सांसद महोदय. Your words will go a long way in reminding us that love for language comes naturally, but to promote it needs a lot of hard work. Thank you once again. समय से ही छोटिया क्षुद्र चित्र जहाँ हमको ए परिवार रो यात्रा संपर्क रे अनेक किछि जणैबो. Can we have the audio visual please? भाषा आमर परिचय निज परिचय पाई जणे भारतीय जेतिके गर्व अनुभव करे परिचयर परिपूरक भाषा को गतिशील करिबा पाई भारत सरकार सेतिकी प्रयत्नशील निजर मातृभाषा सह अन्य आंचलिक भाषा जणे किपरि शिखि पारिबो सेही लक्ष्य रे भारतर विभिन्न प्रांत रे प्रतिष्ठा होईची भाषा केंद्र. पूर्व भारत रे बहुल व्यवहृत ओडिया बंगाली असमिया मैथिली एवं सांताली भाषार गुरु दायित्व बहन करि आसुछि भाषा केंद्र. भाषा भित्तिरे वसुधा विभक्त हेले ओडिया समेत पूर्व भारतर समस्त भाषार सुरक्षा पाई यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बलिष्ठ उद्यम प्रशंसनीय. 21वीं सदी का भारत जिन लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है उसमें हमारी शिक्षा व्यवस्था का भी बहुत ज्यादा महत्व है. कोई कितना भी इनोवेटिव माइंड क्यों ना हो, अगर वो अंग्रेजी नहीं बोल सकता था तो उसकी प्रतिभा को जल्दी स्वीकार नहीं किया जाता था. इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे ग्रामीण अंचल के होनहार बच्चों को उठाना पड़ा है. 130 विषयों की नई किताबें आ रही हैं और मुझे खुशी है कि क्योंकि अब शिक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में भी दी जानी है, इसलिए पुस्तकें 22 भारतीय भाषाओं में होगी. और मैं तो यूएन में भी भारत की भाषा बोलता हूं. अब सोशल साइंस से लेकर इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई भी भारतीय भाषाओं में होगी. भाषार शिक्षा एवं गवेषणार उत्स भाषा केन्द्रर कलैबर वृद्धि हेउछि. प्रधानमंत्रींकर सेही दूरदृष्टि चिंताधारा को वास्तव रूप देउछंती ओडिशार लोकप्रिय नेतृत्व केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान. मुख्यतः इंग्राजी भाषार इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमर बही सबु ओडिया भाषा रे अनुवादित होईछि शिक्षा मंत्रींक उद्यमरे. शिक्षा व्यवस्था को सुगम और सरल करिवा लक्ष्य रे तांको उद्यमरे कुई और देशिया भाषा रे प्रस्तुत होईछि पाठ्यपुस्तक. अखंड भारतर प्रथम भाषा भित्तिक प्रदेश ओडिशार भाषा को रुद्धिमंत करिबा पाई भुवनेश्वर रे एक भाषा केंद्र प्रतिष्ठा रे बिंधाणी साजिछंती केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान. 1970 मसीहारू कार्य आरंभ करिथिबा पूर्व भारतर भाषा केन्द्ररू आज स्वतंत्र होईछि भुवनेश्वर भाषा केंद्र. एही भाषा केंद्र छात्र छात्री एवं गवेषकों पई साजिब शिक्षार मंदिर. भाषा उपरे 10 मासर डिप्लोमा कोर्स करिबा को आग्रही छात्र छात्री पई उपलब्ध हेबो 28,000 पुस्तक. क्लासरूम रे शिक्षा ग्रहण करिबा छात्र छात्री पई हॉस्टल सुविधार व्यवस्था थिबा बेले ऑनलाइन रे मध्य शिक्षा प्रदान हेबो. आंचलिक भाषा जनजाति द्वारा प्रयोग देशिया भाषा उपरे हेबो गवेषणा. भाषा रे व्याकरणर सठिक प्रयोग एवं चित्र माध्यम रे प्रस्तुत हेबो शब्दकोश.
इतिहास गर्भरे हजि जाइथिबा भाषा को पुनरुद्धार करने निरंतर कार्य हेब। विभिन्न पांडुलिपि उपरे गवेषणा सह भविष्यत पीढ़ी डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन माध्यम साजिब भुवनेश्वर भाषा केन्द्र। एते सबु गौरवर मुक साक्षी लक्ष्मी सागर रे प्रतिष्ठा होइथिबा मां सरस्वती विद्या मंदिर को आज श्री गणेश करने को जाउछंती केंद्र शिक्षा मंत्री श्रीयुक्त धर्मेंद्र प्रधान। उत्कल गौरव मधुसूदन दास और उत्कल मणि गोपबंधु भली महानायकों ओडिया भाषा प्रीति को कालजयी करने केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र तत्वावधान रे शिक्षा मंत्रणालय देउथिबा आजिर एही उपहार ओडिशावासी प्रिय उपहार निश्चित। धन्यवाद पूर्वांचल भाषा केन्द्र ये जातिर प्रगति रे आपण मानकर योगदान को सबु भारतीय सबुदिन मन रखिबे। बंधुगण फकीर मोहन को ठारू नहीं मधुबाबू को पर्यंत सारा विश्व रे ओडिया को समस्ते जानिछंती तांको स्वाभिमान पाई। आ आजिकार मान्यवर मुख्य अतिथि परिभाषा रु नहीं परिधान पर्यंत वक्तव्य रु नहीं संकल्प पर्यंत 100% स्वाभिमानी 100% ओडिया। केन्द्र रे शिक्षा उद्यमिता दक्षतार एभली तीनोटी विभाग गुरु दायित्व नेला परे सारा भारतर युवपीढ़ी कोभली भाव शिक्षार सुजोग पाइबे कोभली भाव चाकरी पाइबे तांको दक्षता बढ़िबो। सेतिपाई से जेतिकी कर्तव्यनिष्ठ आम ओडिया पिला माने केमिति गाँव रे थाई भी सर्वश्रेष्ठ शिक्षार सुजोग पाइबे केमिति चाकरी तांको पाखरे पहुँचबो से माने चाकरी पई अपेक्षा करिबेनी केमिति अल्प टिके टंकारे चाकरी न करी निजर बुद्धि विवेक बलरे उद्योग करिबे एवं अन्य माननकु चाकरी देबे सेतिपाई मध्य से सेतिकी ही तत्पर। खाली सेतिकी नुह आम उद्यमितार विकास आम भाषा रे अछि आम भाषार प्रचार प्रसार रे अछि आम शिक्षा आम भाषा को नहीं आम संस्कृति को नहीं ए मंत्र मध्य आमे तांको ठारू पाइछु। आज जेतेबेले सुंदर भाषा केन्द्र आम समस्तंक पई समर्पित हेछि समस्ते अपेक्षा करिसेंती तांको मार्गदर्शन पई अनुरोध करिबी आजिकार मान्यवर मुख्य अतिथि मान्यवर केंद्र मंत्री श्रीयुक्त धर्मेंद्र प्रधान महोदय को सभा को संबोधित करिवे। जय जगन्नाथ। नमस्कार। पूर्व भारतर आंचलिक भाषा केन्द्र रे आज नुआकी लोकार्पित हवा पाई थिबा एकेडमिक तथा प्रशासनिक भवन हॉस्टेल तथा गेस्ट हाउस भवन लोकार्पण उत्सव रे मंच रे उपस्थित थिबा भुवनेश्वर लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्रीमती अपराजिता षडंगी महाशया अतिथि भावे आम भितर उपस्थित थिबा भारत सरकार भाषा समितिर सभापति तथा पद्मश्री मान्यवर श्री चोमू कृष्ण शास्त्री महाशय भारत सरकार शिक्षा विभाग आदरणीय सचिव वरिष्ठ प्रशासक श्री संजय कुमार महाशय वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी आदरणीय नीता प्रसाद महाशय NCERT राष्ट्रीय प्रमुख डायरेक्टर प्रोफेसर दिनेश प्रसाद साकलानी महाशय ओडिशा सरकार शिक्षा विभाग स्कूल शिक्षा विभाग आदरणीय सचिव श्रीमती अश्वथी महाशया सेंटर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज CIIL मैसूर स्थित केंद्र डायरेक्टर आदरणीय श्री शैलेंद्र मोहन महाशय शास्त्रीय भाषा समिति ओडिया भाषार भुवनेश्वर केंद्र डायरेक्टर प्रोफेसर बसंत कुमार पंडा महाशय ये कार्यक्रम रे आम गहन रे उपस्थित थिबा जहां को प्रयास रे ओडिया भाषा शास्त्रीय भाषार मान्यता पाइबार जने प्रमुख सारथी CIIL मैसूर पूर्वतन डायरेक्टर
आदरणीय डीपी पटनायक महाशय, पूर्वतन डायरेक्टर मान्यवर श्री राव, CIIL मैसूर, NCERT रो पूर्वतन डायरेक्टर, ओडिशा रो सुपुत्र प्रोफेसर सेनापति, आमर सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश आदरणीय वाइस चांसलर प्रोफेसर कट्टीमणि, ओडिशा सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोरापुट वाइस चांसलर आदरणीय प्रोफेसर त्रिपाठी, आमर स्थानीय रीजनल कॉलेज रो प्रिंसिपल प्रोफेसर अग्रवाल, आमर ओडिशा रो सुनाम धन्य बुद्धिजीवी संस्कृत विशारद मान्यवर श्री शतपथी, NCERT रो टेक्नोलॉजी विभाग को देखुवा ओडिशा रो सुपुत्र प्रोफेसर बेहरा, मोर बंधु आदरणीय बाबू सिंह, दिलीप महांती तथा मोर सान भाई अत्यंत प्रिय जगन्नाथ प्रधान, एठी उपस्थित थिबा समस्त सज्जन वृंद, समस्त नागरिक माने, सांबादिक बंधु मान, मैं शास्त्री जी जितना उड़िया में कह पाए आप उसको समझे होंगे। शाकलानी जी थोड़ा आप भी समझ में, आप तो पहाड़ से आते हो। अश्वथी जी तो समझ ही चुका होगा, उड़ीसा कैडर के अफसर है। शैलेंद्र मोहन जी आप समझे। प्रोफेसर कट्टीमणि मेरे बात धीरे धीरे उड़िया में बोलने में, आप तेलुगु में बोलेंगे तो भी मैं समझ पाऊंगा। भारत और कौन सी भाषा को काली प्रोफेसर शतपथी सांगे आम थिलु, से संस्कृत रे लक्ष्मी पुराण संपर्क गोटे बही लिखिले, मुझे पढ़ी बुझा प्रचेषा करुली। आमर भारतीय भाषा भितर सबुठु गोटे मूल भाषा है संस्कृत। संस्कृत भाषा को पढ़ी 1500 शताब्दी रे आदि कवि सारला दास महाभारत ओडिया भाषांतरण करथिले। 1500 शताब्दी शेष भाग रे कवि बलराम दास लक्ष्मी पुराण लिखिथिले, दांडी रामायण लिखिथिले, संस्कृत भाषा लिखिथिले। भारतीय भाषा गुड़िक भितर अनन्य संपर्क अछि, अनन्य संपर्क अछि, परस्पर परिपूरक। आज प्रोफेसर मिश्र भी ये बस, मुझे क्षमा चाहिए समस्त को ना नहीं पार्ली नहीं। सबु भाषा गुड़िक अंतर संयोग समस्त अच्छी, इंटरलिंक समस्ते अच्छा भारतीय भाषा गुड़िकर। भारत रे एबे आमे प्रधानमंत्री वक्तव्य शुणुले, गोटे धारणा अच्छी भारत रे विशेष करके जिते इंग्रेज मानकर कॉलोनियल रूल आसिला, आ इंग्रेज माने किसी लुचाई छपेकी करन थिले। 1835 मसीह मैकले जड़े ब्रिटिश प्रशासक सी गोटे मीटिंग करले, मीटिंग रे निष्पत्ति करले जे भारत को व्यवसायिक दृष्टि लंबा समय अधिकार रखिबा पाई, एटी राज चलेबा पाई, एठिकार मूल भाषा को खराब करिबा पाई पड़िबो, लड़ेबा पाई पड़िबो। परस्पर भितरे लड़ेले ही इंग्लिश भाषा को समस्ते ग्रहण करिवे। एते प्रचेष्टा परे भी गोटे जिनसरे से सफल हेले, एपर्यंत गोटे जिनसरे से सफल हेले नहीं, विफल कौतिर हेले, विफल हेले इंग्लिश भाषा को भारत रे पूरा लोक मान भितर सर्वाधिक 10% लोक कहते। शास्त्री जी मत बुझाऊे 7% लोक कहते। मु आउ 3% ग्रेस मार्क दे स्कूल डिपार्टमेंट रे सब आम बंधु मान अच्छा ग्रेस मार्क दे 10% कहूँ। 90% लोक भारतीय भाषा कहते। एडी आदरणीय सेक्रेटरी ओडिशा स्कूल डिपार्टमेंट अच्छा, मातृभाषा मालयाली, आम समस्त मातृभाषा ओडिया, शास्त्री जी मातृभाषा कन्नड़, आमर साकलानी जी मातृभाषा हिंदी भितर आउ गोटे स्थानीय भाषा अच्छी गढ़वाली। ये सब विविध भाषा। ये नीता प्रसाद जी आसबे राड बंगाली अंचल मजा मजी, किसी हिंदी, किसी बेंगली, किसी अवधि, किसी अवधि में किसी मैथिली, ये सब मिशा। शैलेंद्र मोहन जी आप कहाँ से हो? आप प्योर मैथिली, इसलिए इसको यहाँ रख दिया है।
ये सब भाषा मिशा मिशी है परस्पर को बुझा बुझी करके अच्छा ता भितर भी भारतीय भाषा एवं प्रधानमंत्री कहले जे समाने सफल हेले गोटे दृष्टि भारतर अभिजातीय वर्ग लोक मान बुझे पारले तुम्हें बड़ लोक केबे हबो जदि तुम्हें खराटेदार इंग्लिश कहि पारिबो यू नो एटा जदि 4 थर तुम्हें लगे पारिबो तमे ताने बड़ विद्वान हबो या द्वारा कौन है भारत वर्षर जो बड़ समाज ता भितरे गोटे बाधक तैयारी है जे आमे काले भूल हो जिवो आमे क्लास रे गुड़ाए कथा जानिला परे भी कहंती नहीं काले भूल हो जिवो भूल हो गले संग माने हसिबे सारे विरक्ति हेबे चुपचाप रही गले भलो आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हैला बेले प्रधानमंत्री आदेश देले सबुठु महत्व दियो भारतीय भाषा एमती नुहे भारतीय भाषार व्यवस्था आगुर नथिला एठी तो देखंतु जो रीजनल सेंटर टी पूर्व भारतर आंचलिक भाषा केंद्र एठी 1970 मसीहा एठी काम करूछि मु से समय ओडिशा सरकार को धन्यवाद देबी 7.5 एकर जगह ए भलिया गोटे परिसर रे देथिबा कारणरू आज यार भव्यता को समस्ते आमे अनुभव करूछन भारत सरकार 16 कोटी टंका खर्च करके कैंपस रो किछि नव कलेबर करछन्ती मु आज नीता प्रसाद जी को अनुरोध करछि एठी गोटे भल ऑडिटोरियम बनू स्थायी ऑडिटोरियम बनू 500 लोक बसी पड़ला भलिया गोटे भल ऑडिटोरियम बनू जोटा भारतीय भाषा उपरे गवेषणा सभा समिति आलोचना रे सहायक हबो भारत सरकार ता पई जहां पैसा लागिबो खर्च करिवो एटा हमर दायित्व भारत सरकार कर मु आज उत्सव रे केवल 2टी कथा कहबी ये जो 70 मसीहारू आरंभ होइतिबा भारतीय भाषा आंचलिक केंद्र जोठी प्रारंभ रे ओडिया मैथिली ओडिया बेंगली आसामी भाषा एठी ट्रेनिंग दिया जाउथला परवर्ती अवस्था एठू आसाम कटिकी जाइकी गुवाहाटी रे हैला तापर एठी किछि वर्ष हैला मैथिली आउ सांताली भाषा को जोड़ा जाइए आज दिन रे मैथिली सांताली ओडिया और बेंगली ये 4टी भाषार दक्षता विकास ये केंद्र है ये भुवनेश्वर केंद्र आज ये भुवनेश्वर केंद्र नव कलेबर अवसर रे मु समस्त एठी काम करुवा प्राध्यापक मानकू या संगे जोड़ी होइतिबा शिक्षक मानकू या संगे जोड़ी हवा पई संभावना रखुवा भविष्यतर शिक्षक मानकू मु शुभेच्छा जनाऊँ गोटे बड़ केंद्र सारस्वत क्षेत्र एठी तैयारी हो याकू बढ़ेबा पई जहां आवश्यकता हबो ताकू आमे पूरा करिबा बंधुगण राष्ट्रीय शिक्षा नीतिर गोटे महत्वपूर्ण दायित्व नियागला ए पर्यंत भाषा को गोटे विषय करके सब्जेक्ट करके पढ़ाउतला संस्कृत हो हिंदी हो ओडिया हो किंबा अन्य को भारतीय भाषा हो किंबा बाहर भाषा हो भारत स्कूल गुडिकर जर्मन लैंग्वेज भी पढ़ा जाए जापानीज लैंग्वेज भी पढ़ा जाए भाषा को गोटे विषय करके पढ़ाउतला मैथमेटिक्स भलिया सोशल साइंस भलिया इंजीनियरिंग भलिया किंतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति जोर देछि विषय कोटा भी हो किंतु पढ़ेबार माध्यम भारतीय भाषा हो मातृभाषा हो एटा हला मूल फरक आरंभ होइछि जोटा आदरणीय पटनायक बाबू भलिया लोक लंबा समय लड़ाई करके मु गोटे दिन ए लेखा देखी पटनायक बाबू आमर अभिभावक समाज तांकर मानकर ए भलिया समूह प्रोफेसर पटनायक हंतु सतपति बाबू हंतु किंबा आमर प्रोफेसर सेनापति हंतु ये भला आम ओडिया समाज जो माने कि पंडा महाशय हंतु ए मानकर मो भलिया लोक पई एमानकर आदेश मो पई शिरोधार्य मु एबे पटनायक सर आपन लेखा पढ़ी जे जो ओडिया केंद्रटा है कि लाभ कौन सेला मो मन को छुई थिला मु आपन को 2-3टी कथा जणेमा पई चाहूची ओडिया केंद्र भीतर करिछि कोन मु जाईथिली कोटिया
कोटिया ओडिशा सरकार गोटे स्कूल को गली वेलफेयर डिपार्टमेंट ट्राइबल डिपार्टमेंट गोटे स्कूल को गली से स्कूल रे 3-4 क्लास पर्यंत पिला मान संगे मु कथा हाँवाई चेष्टा कली आवासिक विद्यालय थिला पिला माने ओडिया बुझु नथिले कोई किमा देशीय भाषा बुझुले 1 अप्रैल थिला मु सेटिकार टीचर मान संगे शिक्षक मान संगे कथा आली शिक्षक माने ना कोई बुझुले ना देशीय भाषा बुझुले स्थानीय लोक मते लगे गोटे गैप अच्छे मु फेरला परे एनसीईआरटी आमर क्लासिकल लैंग्वेज सेंटर शास्त्रीय भाषा केंद्र भुवनेश्वर और सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोरापुट ये 3 जन जाकू डाकी कले यार मतलब समाधान रास्ता बाहर कर ओडिया भाषा साहित्य जने भलो लोक गवेषक महेंद्र मिश्र नेतृत्व में गोटे समिति तैयारी करागला 2टी प्राइमर माने मधुर माने मधु वर्णबोध भलिया 2टी वर्णबोध देशीय आउ कोई भाषा रे देशीय आउ कोई भाषा रे खूब कम दिन भीतर छपे की शास्त्रीय संगीत शास्त्रीय भाषा समिति एनसीईआरटी आउ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ताकू प्रकाश कले प्रकाश करके ओडिशार कोरापुट जिलार शिक्षक मानकू कोई आउ देशीय भाषार प्रशिक्षण काम भी भीतर सारा जाए ये शास्त्रीय केंद्र ओडिया भाषा कामटी कर आज जानी खुशी मुझे अश्वथी महाशय को पचारूली ओडिशार एससीईआरटी जो अनेक ओडिया विद्वान माने काम करती सेमानक प्रचेष्टारे 21टी भाषा रे स्थानीय भाषा रे जनजाति माने कहूतबा भाषा रे किछि ना किछि साहित्य बनी मु आगामी दिन रे दायित्व दौची ओडिया शास्त्रीय भाषा समिति पूर्व भारतर आंचलिक समिति तथा आमर रिजनल कॉलेज को एमाने समस्त भुवनेश्वर मिसिकी ओडिशार प्रयोग करा जाऊ मोर सब समाज प्रबुद्ध बंधु माने एतरे मार्गदर्शन करंतु युवा पीढ़ीर बंधु माने एतरे सहयोगी हुअंतु ओडिशा रे कहा जाउथवा जेते लोक भाषा 60 रु अधिका जनजाति कहूतबा भाषा अछि ओडिशार पश्चिमांचल रे गोटे भाषार बोली अछि संबलपुरी कहू किमा कौशलिता को किछि बंधु माने कहउचंती दक्षिण ओडिशा रे गंजाम अंचल भाषार माधुर्य अत्यंत भिन्न अत्यंत मधुर मयूरभंज पट को गले से भाषार लालित्य अवर्णनीय आम ढेंकाना पटू गले आपण माने हमको ढेंकाना कह प्रयास करती किरा कण कहूथुवा लोक माने हमें किंतु ता माथा भाषा भितर भी बहुत माधुर्य अच्छे जे पर्यंत पिलाटी जो भाषा रे सीए प्रथम शब्द शुणिला जो भाषा रे सीए प्रथम शब्द कहिला से भाषा रे जदि 5म क्लास पर्यंत एनईपी तो कही अष्टम पर्यंत मु तो कहूँ मो ओडिशा सरकार सचिव महोदय को अनुरोध करुच्ची भारत सरकार सचिव शिक्षा विभाग ये उपस्थित अच्छा आप दोनों मिलके कम से कम 21वीं सदी में जो पटनायक जी ने एक लेख के माध्यम में हमारी कान पकड़ा है ये भाषा केंद्र यहाँ क्लासिकल लैंग्वेज होने के बाद क्या कर रहा है मेरे को लगता है कि उचित उत्तर होगा उचित दायित्व होगा उत्तर तो नहीं देना चाहिए बुजुर्गों को अभिभावकों को लेकिन ये सही काम होगा अगर हम उड़ीसा की सभी लोक भाषा में कम से कम 5 क्लास तक विद्यार्थी और शिक्षक इन दोनों की समझ के लिए ये 2 जनकर बोध पाई अगर हम प्राइमर बना दे 101 भाषा में हम प्राइमर बना दे तब जाके हमारी समाज में होगा क्या। मैं मित्रों सपना देखने वाला आदमी हूं मैं बड़ा सपना देखता हूं बड़ा सोचने वाला आदमी हूं बड़ा सपना देखने वाला आदमी हूं। मेरा सपना क्या है केवे कल्पना करो आम पूर्वज माने जाइथिले 7 दरिया पार है कि 7 दरिया पार है कि महालक्ष्मी नारे आम गत काली अंतरराष्ट्रीय कर्मशाला आयोजन कलु
महालक्ष्मी का ना बलराम दास लिखिଛନ୍ତି कौन? कलिंग महोदधि कन्या, ठीक सतपति सा कलिंग महोदधि कन्या माने आम कलिंग सागर थिला, ये बंगाल महा बे ऑफ बेंगल नथिला। इंग्रेज मैंने आसिले नो नाटा तंकर पहुंचला हलदिया पाखरे, बेंगल को देखिले सेमाने कहले बे ऑफ बेंगल, यार ना कलिंग सागर। भारतर सबु पौराणिक और पुराना ग्रंथ रे कलिंग सागर ना अछि। ये कलिंग सागर को टपिकी आम लोक माने जाइथिले आफ्रिका पर्यंत, आम लोक माने जाइथिले उत्तर पूर्व पर्यंत, आज पाखापाखि जापान पर्यंत। सेतेबेले को भाषा से माने जानिथिले? आम भाषा तो ओडिया भाषा तो कहिथिबे। एई पाइन तो पटनायक महाशय याकू प्रमाण करि पारले जे एटा एते 1000 वर्ष पुराना भाषा, एई पाइन एटा शास्त्रीय भाषा। आज मोर पूरा विश्वास अछि जदि हमर ओडिसा रे रहुतबा लोक माने, बंगाल रे रहुतबा लोक माने, मैथिली कहूतबा लोक माने, सांथाली कहूतबा लोक माने तथा अन्य आंचलिक स्थानीय भाषा लोक माने जदि तांकर निज भाषा रे प्रारंभिक अवस्था रे पढ़िबे आउ लेखिबे, तेबे तांकर अनुसंधान, तर्क, समीक्षा रो शक्ति बढ़िबो। ता द्वारा एटी मधुबाबू माने तैयारी हेबे, ता द्वारा एटी शारदा दास माने तैयारी हेबे, ता द्वारा एटी मान्यवर पटनायक और मान्यवर शतपथी मानक भलिया विद्वान माने तैयारी हेबे, पठाणी सामंत तैयारी हेबे। मोर ओडिया पिला पठाणी सामंत देके विश्व रे ना करिवो, ये आकांक्षा मो भीतर अछि, अपेक्षा मो भीतर अछि। तो भाषा केंद्र सेही भलिया एक गवेषणा केंद्र हो। ओडिया भाषा भाषा भित्तिक राज्य रे भारतर प्रथम राज्य 1936 मसीह रे ओडिया भाषा आधार रे आमे पूर्वर बंगाल परवर्ती अवस्था रे बिहार रु अलगा है कि गोटे प्रथम भाषा भित्तिक राज्य भावे निजर परिप्रकाश करथिले, जोटा कि परवर्ती अवस्था रे भारत सरकार नियम हैला। महाराष्ट्र हैला मराठी भाषा आधार रे, तेलुगु भाषा आधार रे आंध्र हैला, मलयालम भाषा आधार रे केरल हैला, गुजराती भाषा आधार रे गुजरात हैला, किंतु सबुठु आगरे ओडिया भाषा आधार रे ओडिया भाषा हैला। से भाषा आधारित राज्य को 100 वर्ष पूर्व आज 12-13 वर्ष पर 2036 बेलू तेणु 2036 सुधा विश्व को आम स्थानीय भाषा माध्यम रे अनुमान करंतु। आज मु गोटे लेखा सकाल सकाल भोर उठिकी पढ़ुली जे संस्कृत भाषा सह जो कंप्यूटर आज क्वांटम कंप्यूटिंग आड़क कथा गलानी, मेगा कंप्यूटिंग आड़क कथा गलानी। मेगा कंप्यूटिंग रे क्वांटम कंप्यूटिंग रे सबुठु उपयोगी भाषा है भारतीय भाषा गुड़िक। कोडिंग रे काम मिलिबो, एतरे आम पिला मानकु नुआ रोजगार, नुआ ट्रांसलेशन एंड अनुवाद एइतरे काम मिलिबो। बंधुगण मोर भाषा साहित्य रे थिबा अपार ज्ञान भंडार पृथ्वी को जीव, या आम भाषार क्षमता अछि। तेणु यहाँ आम मानकर दायित्व ये पूर्वांचल स्थानीय भाषा गवेषणा केंद्र एटा गोटे प्रकार गोटे विश्वविद्यालय भाया काम करिवो। एठी भारत सरकार प्रचेष्टा विगत दिन मानकरे नरेंद्र मोदी आसीबा परे ओडिशा रे आईआईएम हेच, ओडिशा रे आईजर हेच, ओडिशा रे केंद्रीय विश्वविद्यालय ना को मात्र खोला जाइथिला, आज तार गति धरि आरंभ कर। संस्कृत विश्वविद्यालय रे गत काली मु 100 कोटी टंकार नुआ काम आरंभ करके आसी। ये पाखापाखि पुराना नुआ मिसेक 29 कोटी टंकार सैंक्शन ये काम पाई अछि। हजार कोटी टंका आज केवल ओडिशा रे भारत सरकार को द्वारा खर्च होउची स्कूल शिक्षा टू आरंभ करके उच्च शिक्षार गवेषणा पर्यंत। ये लाभ ओडिया भाषा आधार मिलू,
ओडिया को मिलू स्थानीय लोक मान को मिलू बड़ दृष्टि रे मिलू ये अपेक्षा आकांक्षा सह मु गोटे दायित्व अपेक्षा रखिकी जाऊची 2014 मसीह एठी ओडिशार शास्त्रीय भाषा केंद्र तैयारी है डॉक्टर बसंत पंडा भले जने योग्य व्यक्ति तार दायित्व अच्छा बसंत भाई मोर अनुरोध आपण बहुत चंडी बाबू छेड़ी बस प्रफुल्ल सार अच्छा पट्टनायक सार अच्छा छत्रपति बाबू अच्छा सेनापति बाबू अच्छा सेनापति बाबू को मु धन्यवाद देवाई चाहूँ एवं आम राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुजाई नुआ पाठ्यपुस्तक आरंभ करुँ ये शिक्षा नीति आसवा पूर्व सेनापति बाबू को थरे मु भेटिबा अनुरोध कली सेनापति बाबू मोर भेट है मु कहली सेनापति बाबू एनसीईआरटी बही आम ओडिया कथा केमती रहिबो से कहले आज्ञा रहिबो 2017 बेलू पाइक विद्रोह 200 वर्ष आम पालन करूँ मु ओडिया समाज तरफ सेनापति बाबू को एनसीईआरटी को कृतज्ञता देवी बक्सी जगबंधु विषय रे पाइक विद्रोह विषय से बही रे स्थान देते बेरा बेरा मने पकेबे मझे मझे ना आप भूली जाऊँ आमे आम लोक मान ओडिशा रे कंकड़ा गुण सरला आग आम ओडिया लोक मान साहित्यकार माने कहते जड़े आउ जन को चढ़ीगले पछुआड़ू टाणीदेबा जदि मोर शतपथी बाबू विश्व रे संस्कृत विशारद हेबे ओडिया भावे मो छाती रे कुंडे मुठ हवा दरकार जदि सेनापति बाबू मो ओडिया लोकंकर कथा को साहित्य रे लिखिले एनसीईआरटी बही रे सर्वभारतीय स्तर रे बक्सी भलिया योद्धार विषय इतिहास लिखा गला एटा मो पई गर्व गौरव विषय मुझे आदर करवा प्रशंसा करवा मोर दायित्व मु अपेक्षा रखी बसंत भाई ओडिया भाषा को लेकिन ओडिया साहित्य को लेकिन ओडिया जनजीवन को लेकिन 2023 मसीह मुझे बुझुली अश्वती मैडम को डिसेम्बर मास शेष सप्ताह छुट्टी हम ओडिशा रे आज आम नवेम्बर 19 अच्छा मासे परे ओडिशा रे ओडिशा सरकार सहयोग नहीं आमे ओडिया भाषा शास्त्रीय भाषा समिति गोटे स्कूल आउ कॉलेज उभय स्तर रे दुईटी विशेष धरणर प्रतियोगिता करू एटार संयोग चमू शास्त्री जी प्रयास रे 11 डिसेम्बर को आखि आगे रखी जो दिन सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडुर कवि बनारस रे पाठ पढ़िले हिंदी भाषार विद्वान हेले तमिल भाषार बहुत बड़ा विद्वान जो मैंने आज भाषा को लेकिन झगड़ा कर दक्षिण भारत उत्तर भारत प्रतियोगिता कराउछंती एटा राजनीतिक प्रतियोगिता समाज गोटे आमे सिमती ओडिया भाषा रे से आज भारत सरकार शिक्षा विभाग एवं भारतीय भाषा उत्सव पालन करुछ मु अनुरोध करी भारत सरकार शिक्षा विभाग अधिकारी मानक ओडिशा शास्त्रीय भाषा समिति आनुकूल्य रे ओडिशा सरकार सहयोग नहीं समाज रा सहयोग नहीं ओडिशार सबु कॉलेज और स्कूल रे गोटे ओडिया भाषार प्रतियोगिता हो प्रबंध हो वक्तृता हो नुआ नुआ टेक्नोलोजी को उपयोग करिवार आरंभ हो ये सबुर गोटे नुआ पीढ़ी पाखरे ओडिया भाषा को लोकादृत करेबा आज गोटे आह्वान अच्छी मु दिल्ली बॉम्बे विदेश रे थिबा लोकन को कथा कहूने मुझे भुवनेश्वर बस मोर बहुत बंधु मानक को जानूचे ना कह विशेष कर मो जो भौणी मान अच्छे घर को मझे मझे जाए ना छुआ मान को भेटे अधांग छुआ को ओडिया जना नहीं आ बड़ बड़िया सुट बुट स्कूल पढ़ेले जो मैंने हसुन से बेसी जना नहीं एटा गोटे आह्वान मोर ओडिया नुआ पीढ़ी ओडिया भाषा केम जानी बड़ी चूरा जानी कौन सारू पिठा जानी आंबिल कौन जानी करडी कौन जानी ओडिया स्थानीय भाषार विभिन्न माधुर्य कौन जानी शिखेबा पड़ो ओडिया
शास्त्रीय भाषा समिति या महत्व देकी कार्यक्रम अभिरचना करू। ओडिया भाषा को अस्थि मजागत करबा पड़िबो। ओडिया भाषा केवल एक स्थानीय भाषा नुहे, ये मातृभाषा, ये लोक भाषा। ये ओडिया भाषा को जानिक दिने आम कोणार्क मंदिर तैयारी करथिले, आम लिंगराज मंदिर तैयारी करथिले, पुरी बड़ देउल तैयारी करथिले, सात समुद्र पार करके व्यवसाय वाणिज्य करके कोटी अपार संभावना राज्य होइतिले। आउ थरे 21 शताब्दी रे आम भाषा आधारित राज्य जेतबेले 100 वर्ष होतुबो, जेतबेले 21 शताब्दी आम ओडियांकर स्वप्न रहिबा दरकार। पृथ्वी रो बौद्धिक केंद्र आमर ओडिशा हवा दरकार, आम भुवनेश्वर हवा दरकार। ए प्रकार महत्वाकांक्षा रखिकी आज उत्सव रे आपण समस्त को कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। भारत सरकार के तरफ सामिल होइतिबारु बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जननी, भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय। ओडिशा रे 2,04,000 कोटी टंकार पुंजी निवेशर गुरु दायित्व नहीं ताकू सफल भाव सुचारू भाव संपादन कर माननीय प्रधानमंत्री आपण को उत्कल रत्न ओडिशा रत्न डाकती। ओडिशा एभली गोटे रत्न को पाइकी निश्चित भाव गर्वित। आपणकर भाषा ज्ञान भाषा प्रेम आम सब बड़े प्रेरणा नहीं आसीचु, आगक नेबु। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट डायरेक्टर CIIL मैसूरू प्रोफेसर शैलेंद्र मोहन जी टू प्लीज प्रपोज वोट ऑफ थैंक्स। नमस्कार। आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री, आदरणीय श्री संजय कुमार जी, सचिव स्कूल शिक्षा, माननीय श्रीमती अपराजिता सारंगी जी, सांसद भुवनेश्वर, माननीय श्री चमुकृष्ण शास्त्री जी, अध्यक्ष भारतीय भाषा समिति, माननीय नीता प्रसाद जी, संयुक्त सचिव शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी जी, माननीय निदेशक NCERT, माननीय अश्वती मैडम, माननीय प्रोफेसर बसंत कुमार पांडा, परियोजना निदेशक शास्त्रीय उड़िया विशिष्ट केंद्र। यह मेरा सौभाग्य है कि भारतीय भाषा संस्थान मैसूर के पूर्वी क्षेत्र पूर्वांचल भाषा केंद्र भुवनेश्वर के प्रशासनिक सह शैक्षणिक भवन एवं छात्रावास सह अतिथि गृह के उद्घाटन समारोह में धन्यवाद ज्ञापन का अवसर मिला है। इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं। इस आयोजन के मार्गदर्शन के लिए मैं आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी एवं शिक्षा मंत्रालय के अन्य मंत्रीगण पदाधिकारियों के प्रति अपना हार्दिक धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूं। माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर इस आयोजन पूर्वी क्षेत्रीय भाषा केंद्र के भवनों का उद्घाटन किया, इसमें शामिल हुए एवं अपने वक्तव्यों से हमें अनुयुक्त किया, इसके लिए धन्यवाद। मैं माननीय अपराजिता सारंगी जी, सांसद भुवनेश्वर सेंट्रल का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सक्रिय समर्थन एवं उनकी उपस्थिति से इस कार्यक्रम का सफल आयोजन संभव हो सका। मैं आदरणीय संजय कुमार जी, मैडम अश्वती मैडम, चमुकृष्ण शास्त्री जी, प्रोफेसर दिनेश सकलानी जी, प्रोफेसर बसंत कुमार पांडा, जिनकी उपस्थिति एवं सतत सहयोग एवं सहकार से इस कार्यक्रम का आयोजन सफल हो सका। तत्पश्चात मैं इस सम्मेलन में आयोजन में सक्रिय सहभागिता करने के लिए दूर दूर से पधारे भारतीय भाषा संस्थान एवं अन्य संस्थानों के अधिकारी कर्मचारीगण, जिनकी उपस्थिति से इस आयोजन को सुचारू रूप से चलाया जा सका। इसके अतिरिक्त इस आयोजन के प्रचार प्रसार और सहयोग करने वाले मीडिया कर्मी, स्वयंसेवक, कार्यकर्ता एवं अन्य कर्मी का भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और अंत में उन सभी ज्ञात अज्ञात व्यक्तियों, संगठनों, संस्थाओं के प्रति अपना हार्दिक धन्यवाद एवं आभार ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी ढंग से इस उद्घाटन समारोह के आयोजन के और संचालन में योगदान दिया हो। और अंत में आदरणीय पद्मश्री DP पटनायक जी एवं पूर्व निदेशक का आभार, आप सभी का आभार। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।
Please rise for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय जय जय